بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علاقائی خبروں کے خصوصی بلیٹن کے ساتھ میں ہوں عبدالحادی اور میں ہوں نزہت نور۔ علاقائی بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو اہم اور افسوسناک خبر سے آگاہ کریں گے۔ رسپیلا میں مکران کوسٹل ہائی وے پر 2 گاڑیوں میں تصادم، 4 افراد جاں بحق اور 4 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ حادثہ مکران کوسٹل ہائی وے سپٹ کے مقام پر پیش آیا ہے۔ نعشوں اور زخمیوں کو سول اسپتال اوتھل منتقل کر دیا گیا۔ جاں بحق افراد زخمیوں کا تعلق خیبر پختونخوا سے بتایا جا رہا ہے۔ اور ادھر پتوکی میں ملتان روڈ پر نامعلوم موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ سے خاتون جاں بحق ہو گئی۔ جاں بحق خاتون کی شناخت سونیا بی بی کے نام سے ہوئی، جو کہ جیمبر کی رہائشی ہے۔ لاش کو قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اطلاع ملنے پر پولیس نے لاش قبضے میں لے کر کارروائی کا آغاز کر دیا۔ مقتولہ سونیا نجی کاٹن فیکٹری میں ملازم تھی۔ تو ناظرین، سفاکیت کے انتہا، چوک سرور شہید کے نواحی علاقہ اڈا ریاض آباد چک نمبر 617 میں خون سفید ہو گیا۔ معمولی سے گھریلو تنازع پر بھتیجے نے چچا کو قتل کر دیا۔ ریسکیو ٹیم نے نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ٹی ایچ کیو ہسپتال چوک سرور شہید منتقل کر دیا ہے۔ ایس ایچ او تھانہ نے موقع پر پہنچ کر قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ ساہیوال میں اولڈ ہڑپا روڈ پر 2 تیز رفتار موٹر سائیکل آپس میں ٹکرا گئے۔ حادثے میں ایک شخص جاں بحق جبکہ 3 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ زخمیوں اور نعش کو ریسکیو نے ٹیچنگ اسپتال منتقل کر دیا ہے۔ ساہیوال میں اولڈ ہڑپا روڈ پر 2 تیز رفتار موٹر سائیکل آپس میں ٹکرا گئے۔ حادثے میں ایک شخص جاں بحق جبکہ 3 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ زخمیوں اور نعش کو ریسکیو نے ٹیچنگ اسپتال منتقل کر دیا۔ پاک پتن میں دوسری شادی سے منع کرنے پر شوہر نے بھائی کے ساتھ مل کر فائرنگ کر کے بیوی کو قتل کر دیا۔ ڈی پی او کے نوٹس پر ملزمان گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ دیتے چلیں اور آپ کو بتائیں کہ پاک پتن میں دوسری شادی سے منع کرنے پر شوہر نے بھائی کے ساتھ مل کر فائرنگ کر کے بیوی کو قتل کر دیا۔ ڈی پی او کے نوٹس پر ملزمان گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ گاؤں امر سنگھ میں دوسری شادی سے منع کرنے پر شوہر فائرنگ کر کے بیوی کو قتل کر دیا ہے۔ مقتول شبانہ 3 بچوں کی ماں تھی اور اپنے شوہر کو دوسری شادی کرنے سے منع کرتی تھی، جس پر جھگڑا ہوا۔ ملزم خالد نے بھائی ساجد کے ہمراہ اپنی بیوی شبانہ کو فائر مار کر قتل کر دیا اور فرار ہو گئے۔ ڈی پی او پاک پتن جاوید چدڑ کے نوٹس پر چک بیدی پولیس نے فرار ہونے والے ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ اور تھانہ روجان کی حدود میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے 25 سالہ نوجوان کو قتل کر دیا۔ فائرنگ سے جاں بحق ہونے والے شخص کی شناخت اکرام کے نام سے ہوئی ہے۔ 25 سالہ نوجوان اکرام کا تعلق دولانی قبیلے سے ہے۔ پولیس نے پوسٹ مارٹم کے لیے لاش کو روجان ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا۔ تھانہ روجان پولیس نے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے۔ کوٹری پولیس کی بروقت اور پیشہ ورانہ کارروائی، 24 گھنٹوں میں قاتل کو آلۂ قتل سمیت گرفتار کر لیا۔ تھانہ کوٹری کی حدود میں ایک خاتون سے سنبل کی لاش ملی تھی، جسے کلہاڑی کے وار کر کے بے رحمی سے قتل کیا گیا تھا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ایس ایچ او کوٹری انسپکٹر شہزاد رضا قازہ بما پولیس پارٹی موقع پر پہنچے اور جائے وقوع کو گھیرے میں لے کر شواہد جمع کیے۔ ڈی ایس پی کوٹری شاہنواز جوکیو کی نگرانی میں فوری تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا، جس میں جدید تفتیشی طریقہ کار، خفیہ اطلاعات کو بروئے کار لایا گیا۔ ابتدائی شواہد کی روشنی میں مقتولہ کی شوہر اور دانش مسیح پر شک ظاہر کیا گیا، جبکہ شامل تفتیش کیا گیا۔ سخت پوچھ گچھ کے بعد دوران تفتیش اعتراف جرم کر لیا گیا، جبکہ گھریلو تنازع کے باعث اس نے اپنی بیوی کو قتل کیا تھا۔ ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش جاری ہے۔ ساہیوال میں تھانہ غلامڈی کی حدود میں دوران ڈکیتی قتل کا واقعہ پیش آیا۔ ڈی پی او ساہیوال رانا طاہر رحمان خان نے قتل کے واقعے کا نوٹس لے کر رپورٹ طلب کر لی ہے۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے ایس ڈی پی او سٹی سرکل کی زیر نگرانی ٹیمز تشکیل دے دی گئیں۔ مقتول کی شناخت 62 سالہ غلام مرتضیٰ کے نام سے ہوئی ہے۔ ڈی پی او ساہیوال کا کہنا تھا کہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ ملزمان کو جلد گرفتار کر کے قانون کے مطابق سزائیں دلوائی جائیں گی۔ شکرگڑھ میں مزدے کی بیل ریڑھی کو ٹکر، حادثے کے نتیجے میں بیل ہلاک ہو گیا۔ شیر گڑھ میں روڈ پر ہیوی اور لوکل ٹریفک کی بھرمار ہے، جبکہ
ट्रैफिक की भरमार और टूट फूट से आए दिन हादसात रोनुमा हो रहे हैं। हरिपुर थाना बीड़ की हदूद में नामालूम अफराद की फायरिंग से नौजवान कत्ल हो गया। कत्ल होने वाले नौजवान की शिनाख्त आसिफ के नाम से हुई है। पुलिस का कहना है कि इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक वाकया पुरानी दुश्मनी का शाखसाना लगता है। हरिपुर पुलिस ने नाश को कब्जा में लेकर मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दिया। उधर हैदराबाद में लतीफाबाद नंबर 11 में डंपर माफिया की गफलत मोटरसाइकिल सवार नौजवान शदीद जख्मी हो गया। हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद नंबर 11 में तेज रफ्तारी से चलने वाले ट्रक ने एक मोटरसाइकिल सवार नौजवान को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में नौजवान शदीद जख्मी हो गया। हादसे के फौरन बाद जख्मी नौजवान को मुकामी अफराद की मदद से सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। ट्रक ड्राइवर वाक़या के बाद जाए मौके से फरार हो गया। और उधर गौसपुर जिला भर के कच्चे के डाकुओं ने अपने कब्जे में ले लिया, जबकि कच्चे के डाकुओं ने जमाल थाना की हदूद में 50 साला शख्स को अगवा कर लिया। गौसपुर गांव अलीफ बाजरानी नायर और माइनर के रिहायशी मोहम्मद हसन मलिक को डाकू अगवा करके कच्चे की तरफ फरार हो गए हैं। गौसपुर जिला भर में अमन की सूरत हाल खराब होने लगी है। गौसपुर पे सालों से कायम बदअमनी को जिला भर की पुलिस कंट्रोल करने में नाकाम हो गई। मुरीद के मोहल्ला रहमानपुरा में गुलजार नामी ताजिर के घर मुबैना 25 लाख मालियत की डकैती की वारदात हुई है। मुसल्ला 5 डाकू घर का सफाया करके फरार हो गए। मुरीद के में मुतासरीन के मुताबिक 5 डाकू घर वालों को यरगमाल बनाकर 5 तोला तलाई और जेवरात नकदी 5 लाख रुपए कीमती घड़ियां और DVR ले गए। मुतासरीन ने एहतजाज करते हुए वजीर आला और IG पुलिस पंजाब से इंसाफ मुहैया करने, डाकुओं को गिरफ्तार करके लूटा गया सामान वापस करने का मुतालबा किया। सिटी पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके डाकुओं की तलाश शुरू कर दी। फिरोजवाला में कोट अब्दुल मालिक में गैस रिफिलिंग के दौरान दुकान में जोरदार धमाका हो गया। धमाका सिलेंडर में गैस भरते हुए गैस लीकेज होने की वजह से हुआ। सिलेंडर धमाके में 2 अफराद बुरी तरह झुलस गए हैं। जख्मियों को रेस्क्यू 1122 ने तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू की इमदादी टीम्स आग बुझाने में मसरूफ हैं। केडोड़ पक्का में पुलिस की मंशियात के खात्मे की मुहिम कामयाबी से जारी है। सिटी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोश गिरफ्तार करके कब्जे में लेकर 1 किलो से ज्यादा हेरोइन बरामद कर ली है। पुलिस ने खुफिया इतला पर अल्लाह वराय चौक से मंशियात फरोश गुलाम शहबाज को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम गुलाम शहबाज के कब्जे से 1060 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मुलजिम गुलाम शहबाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि मजीद तफ्तीश की जा रही है। थाना शहर सुल्तान पुलिस का मंशियात फरोशों और नाजायज़ असलाह रखने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी, जबकि 2.820 किलोग्राम चर्स बरामद की गई, जबकि 30 लीटर शराब, 1 अदद पिस्टल, 30 माह गोलियां बरामद की गई। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मुजफ्फरगढ़ डॉक्टर रिजवान अहमद खान की खसूसी हिदायत पर SHO थाना शहर सुल्तान का अपनी टीम के हमरा मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुलजिम महबूब को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जा से 1420 ग्राम चर्स, मुलजिम बिलाल से 1400 ग्राम चर्स बरामद करके, जबकि शराब फरोश एजाज को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जा से 30 लीटर शराब, देसी और नाजायज असलहा रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई में मोहसिन को गिरफ्तार करके उसके कब्जा से 1 अदद पिस्टल, 30 बोर बमा गोलियां बरामद कर ली हैं। अलहदा मुकदमा दर्ज, मुलजिमान बंद हवालात हैं था। और इस मौका पर SHO थाना शहर सुल्तान का कहना था कि जराइम पेशा अफराद, मंशियात फरोशान और नाजायज असलहा रखने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। संधेलियावाला में थाना अरोती की हदूद में चोरी की बड़ी वारदात। चोर घर से 7 तोले सोना, 1,16,000 नकदी, 5,000 सऊदी रियाल, 3 मोटरसाइकिल के कागजात, चेक बुक और ATM कार्ड भी साथ ले उड़े हैं। मजीद देखते हैं सुहेल अब्बास की इस रिपोर्ट में। आज जी बिल्कुल थाना अरौती की हदूद में चोरी की बहुत बड़ी वारदात। चोरों ने आबिद नामी शख्स के घर में 4 छतों की टैलें तोड़कर दाखिल हुए। मुबीना तौर चोर घर से 7 तोले सोना, 1,16,000 नकदी, 5,000 सऊदी रियाल, 3 मोटरसाइकिल के कागजात,
चेक बुक और एटीएम कार्ड साथ ले उड़े। चोरी का ये वाकया थाना अरौती की हदूद चक नंबर 757 का अभी में पेश आया। चोरी की वारदात के बाद एले इलाका जो है वो सरापा एहतजाज बन गए। इलाके में खौफ व हरास फैल गया। एले मोहल्ला ने जो है वज़ीर आला पंजाब आरपीओ फैसलाबाद से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। खुदारा जो है इलाके को जराइम से पाक किया जाए और आवाम जो है सुख का सांस ले सके। कैमरामैन टीम के साथ सुहेल अब्बास, टीवी टुडे न्यूज़, संदिलिया वाली। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के विवियन इंसाफ आवाम की दहलीज पर के तहत रीजनल पुलिस ऑफिसर गुजरावाला तैयब हफीज़ चीमा ने मंडी बहाउद्दीन का दौरा किया। इस दौरे का मकसद अवामी मसाइल का बरह रास्त जायज़ा लेना और महकमाना कारकर्दगी का अहाता करना था। आरपीओ तैयब हफीज चीमा ने अपने दौरा मंडी बहाउद्दीन के दौरान डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर वसीम रियाज खान के हमरा पहाड़ियां वाली में नई तामीर शुदा पुलिस वेलफेयर मार्केट का इफ्तिताह किया है। इस मार्केट का क़याम पुलिस एहलकारों और उनके अहल खाना की फलाह बहबूद के लिए एक अहम संग मील करार दिया जा रहा है। आरपीओ ने थाना पहाड़ियां वाला और थाना भागट में खुली कचहरियों का इनेकाद किया, जहां शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। शहरियों ने अपने मसाइल बराह रास्त आरपीओ के सामने रखे हैं, जिन्हें ना सिर्फ बागौर सुना गया बल्कि मौका पर ही मुतल्लिका अफसरान को उनके फौरी हल के अहकाम भी जारी किए गए हैं। इस मौका पर आरपीओ के दोनों थानों की इंस्पेक्शन भी की गई है, कारकर्दगी का जायजा लिया गया और बेहतरी के लिए हिदायत जारी की गई। पाकपतन में मलिक गुलाम अब्बास अवान एसपी इन्वेस्टिगेशन को आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने शहर फरीद में तैनात करके अवाम के दिल जीत लिए हैं। मलिक गुलाम अब्बास अवान एसपी इन्वेस्टिगेशन ने चार्ज संभालते ही अपने दफ्तर में टाउट माफिया का दाखिला बिल्कुल बंद कर दिया। उन्होंने मजीद कहा कि तमाम मुकदमात की तफ्तीश बगैर रिश्वत और सिफारिश के मेरिट पर होगी। पुलिस मुलाजमीन अपना किबला दुरुस्त कर लें, मुकदमात की तफ्तीश हकाइक के मुताबिक करें। मजलूम का साथ देकर अगर पुलिस मुलाजमीन गफलत कोताही या रिश्वत लेता हुआ पकड़ा गया तो इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शकरगढ़ में पंजाब रेंजर्स जंगली हयात के बचाव के लिए मैदान में आ गई, जबकि रेंजर्स 6 विंग की बड़ी कार्रवाई। 6 विंग कमांडर कर्नल शफीकुर रहमान की ज़ेर क़यादत पंजाब रेंजर्स 6 विंग नारोवाल के जवानों ने डेरा नूर मलिक की एरिया में नायाब जंगली हयात के गैर कानूनी शिकार में मुलविस गैंग को रंगे हाथों पकड़ लिया है। शिकारी नायाब जंगली हिरन का शिकार करके जानवर को ज़िबा करके अपने सामान में छुपा कर ले जा रहे थे। शहरियों की तरफ से हिरन और पाड़े का गोश्त फरोख्त करने का इंकशाफ भी हुआ है। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज़ यूनेस्को और मीडिया फाउंडेशन के इश्तिराक से पाकिस्तान में मीडिया और इंफॉर्मेशन लिटरेसी फ्रेमवर्क के मौजू पर एक रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप का मकसद कौमी सतह पर मीडिया और इंफॉर्मेशन लिटरेसी के लिए मुअस्सर पॉलिसी फ्रेमवर्क की तैयारी था। मुकर्रिर ने मीडिया लिटरेसी की कौमी तालीमी निसाब का हिस्सा बनाने, डिजिटल शाऊर बढ़ाने और गलत मालूमात के खिलाफ तनकीदी सोच को फ़रोग देने पर जोर दिया। इसके साथ साथ सोशल मीडिया सार्फिन और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए तरबियती प्रोग्राम्स को भी नागुज़ीर करार दे दिया। वर्कशॉप के अहतमाम पर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इलियास ने शुरका में इस्नाद तकसीम किए और कहा कि एक बाखबर और ज़िम्मेदार मुआशरे की तश्कील आज की अहम तरीन ज़रूरत है। और नाज़रीन, 14 साल लड़के को ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की तरफ से राग़िब करने का मामला। सिटी पुलिस ऑफिसर गुजरावाला मोहम्मद अयाज सलीम ने वाक़या का फौरी नोटिस ले लिया। पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ गुजरांवाला और ज़िला पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए वाक़े में मुलविस ट्रांसजेंडर्स को हिरासत में ले लिया है। CP मोहम्मद अयाज सलीम का कहना था कि मुल्ज़िमान ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल की, जिसमें 14 साल लड़के को वरगला कर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का हिस्सा बना रहे थे। चाइल्ड लेबर, जबरी मुशक्क़त में मुलविस अनासिर के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ख़ुसूसी हिदायत पर जहां बाकी महकमों की बेहतरी के लिए काम जारी है, वहां पसमानदा इलाकों की तहसीलों में भी सेहत की बेहतर सहूलियात मुयस्सर करने के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जतोई में जदीद डिजिटल एक्सरे मशीन नस्ब कर दी गई है। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जतोई में मरीजों को बेहतर सेहत की सहूलियात मुयस्सर करने के लिए जदीद करोड़ों रुपए मालियत की
डिजिटल एक्सरे मशीन नस्ब, जबकि जनूबी पंजाब के 2 तहसीलों में से एक तहसील जुतई भी शामिल है, जिसको जदीद डिजिटल करोड़ों की लागत की एक्सरे मशीन से मुस्तफ़ीद किया गया है, जिससे फेफड़ों के मर्ज़ में मुब्तला मरीज़ों को तशख़ीस फौरी और बग़ैर किसी एक्सरे फिल्म के ऑनलाइन मर्ज़ का पता चलाया जा सकता है, जिससे मरीज़ों को एक ही छत के नीचे तमाम टेस्ट एक्सरे अद्वियात मुयस्सर कर दी गई। इस मौके पर डॉक्टर उस्मान काज़मी MS तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जोतई का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की खुसूसी काविशों की बदौलत हुकूमत पंजाब की जानिब से तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जोतई में करोड़ों जदीद मशीन नस्ब की गई है। और 2022 सैलाब में तबाहशुदा शमशान घाट दोबारा तामीर कर दिया गया। मैंगोरा के हिंदू सिख बरादरी का देरीना मुतालबा पूरा हो गया। जी हाँ, सवात में वज़ीर आला के मुशीर बराए अक़लियती अमूर वज़ीरज़ादा ने बाकायदा इफ्तिताह कर दिया है। वज़ीरज़ादा का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अक़लियतों के हकूक़ के लिए कोशां हैं। मैंगोरा का शमशान घाट तामीर करना इस सिलसिले की कड़ी है। अक़लियतों के दीगर मसाइल भी तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। लियाकतपुर में थाना शेदानी की हदूद में रोड की तामीर के दौरान 62 अफराद का साइट इंचार्ज पर हमला। दर्जनों अफराद ने साइट इंचार्ज को तशद्दुद का निशाना बनाया है। तशद्दुद की वीडियो TV टुडे न्यूज़ को मौसूल हो गई है। जी हाँ, लियाकतपुर के नवाई इलाके में इमरान नामी शहरी डफली कबीर खान रोड की तामीर में बतौर साइट इंचार्ज कर रहा था, जबकि मुलजमान बाहम मशवरा होकर आए और हमला कर दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि शहरी को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। काहना के इलाके गजुमता में UC 244 में बर्थ सर्टिफिकेट के इंदराज की फ़ीस 200 रुपये और लेट इंदराज की फ़ीस 400 रुपये कर दी गई। साइलिन ने TV टुडे से गुफ्तगू करते हुए खुशी का इजहार किया। जी हाँ, इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं कलीमुल्लाह राजपूत से। मौजूद हूँ UC 244 गजुमता। बात करेंगे यहाँ पे आए साइलिन को किन किन मुश्किलात का सामना है, किस तरह से यहाँ पे जो आवाम आती है तो उनके साथ कैसा सलूक किया जाता है। असलम UC 244 में बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने तो कोई टेंशन तो जी नहीं? किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं हुई। हस्बे ज़ाब्ता आए हैं, अपना वो क्वाइफ दिए हैं, सेक्रेटरी साहब ने फौरी काम किया है। जो इनकी मुनासिब जो हुकूमत की तरफ से मुकर्रर करदा फ़ीस है वो हमने पे की है और विद इन नो टाइम हमें मसूल हो गया। आप सेटिस्फाई हैं सेक्रेटरी? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ पे और भी दोस्त मौजूद है जिन्होंने अभी जिनके हाथ में बर्थ सर्टिफिकेट मौजूद है। अच्छा, ये बाबा जी की हाल है तो ठीक हो? हुणे बनवाई जे? ਹੁਣੇ ਬਣਵਾਈ अच्छा, किन्ने पैसे लेने? ਇਹ ਜੀ ਲੇਟ ਫੀਸ ਦੋ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ 200 जी, ਹੈ जी। ਲੇਟ 400 है। अच्छा, लेट अंदराज दे 400 रुपये, मतलब मकूल फीस ले रहे हैं। कोई परेशानी तो कोई नहीं? परेशानी नहीं हुई जी। इस सेक्रेटरी साहब का की नाम है? शाकर साहब। शाकर साहब। UC 244 है जी। आवाम के शिकायत पर हम यहाँ पे आए थे, लेकिन जब आवाम से ही बात की है तो पब्लिक से पता चला है कि जी सेक्रेटरी शाकर साहब जो है UC 244 गजुमता के ऐसे तरीके के साथ आवाम के साथ मोहब्बत प्यार से पेश आते हैं और जो मकूल फ़ीस है 200 रुपये फ़ीस है, इसकी लेट अंदराज की 400 फ़ीस है, उसी हिसाब से चार्ज कर रहे हैं। अभी सेक्रेटरी साहब से भी बात करेंगे। आपका शुक्रिया। और आवाम जिस तरह आती है, आप मेरे पास ना भी आते जी जी। तो बाहर इतना बड़ा ऑफिस है गजुमता यूनियन कौंसल, आपको पता है कितने गाँव लगते हैं। अब शार्ट हो गई हैं यूनियन कौंसल, लेकिन फिर भी आप जिससे मर्जी बाहर से पूछें, मेरे पास आएंगे तो फिर तो मैंने तो सरकारी फ़ीस ही बतानी है। लेकिन मैंने आवाम से भी बात की है। आवाम से बात करें, पूछे बर्थ सर्टिफिकेट की फ़ीस नॉर्मल 200 है, लेट अंदराज 400 है, और अगर मोटिफिकेशन या कोई चेंजिंग है वो अथॉरिटी के ज़रिए, अगर कमेटी के ज़रिए है तो वो 700 है, 700 रुपये है। अच्छा, लेट अंदराज कितना लेट अंदराज? मतलब जैसे कि बच्चे की पैदाइश हुई है, मौके पर आप बनवाने के लिए आ जाते हैं, 1 माह बाद उसकी 200 रुपये, 2 माह बाद 200 रुपये, और अगर कोई 10 साल या 5 साल का बच्चा 10 साल तक कोर्ट से डिग्री लेनी पड़ती है। 7 साल के बाद ना कोर्ट से डिग्री सिविल जज। ठीक है, हमारे नुमाइंदे कलीमुल्लाह राजपूत हमें तफसीलात फ्राहम कर रहे थे। आपका शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे शकरगढ़ के मौजा बदवाल मोड़, सागरपुर और क्लास गुराया के इलाकों में गंदम की फसल में अचानक आग भड़क उठी है। सैकड़ों एकड़ गंदम की खड़ी फसल जलकर खाकस्तर हो गई। जी हाँ, किसानों और मुकाबी आबादियों में अपनी मदद आप के तहत आग बुझाई गई, जबकि रेस्क्यू ज़राए का कहना है कि गंदम में आग लगने की वजह सिगरेट नोश अफराद की गैर जिम्मेदारी और लापरवाही है, तो दूसरी जानिब सागरपुर में बारात में चलाई गई आतशबाजी के वाक़यात से लगने वाली आग ने दर्जनों एकड़ गंदम की फसल को जलाकर राख कर दिया।
किसानों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि फसलों की इंश्योरेंस की जाए ताकि नुकसान की सूरत में किसान की माली मुआवनत हो सके। और कंडियारों में जस्कम की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया और कैंप कायम कर दिया गया। इस मौका पर मुजाहिरीन का कहना था कि जब तक कैनाल वापस करने का लेटर जारी नहीं किया जाता ये तहरीक जारी रहेगी। सिंध को खुश करने की साजिश को किसी भी सूरत में कबूल नहीं करेंगे। इस मौका पर हबदार मीर बहर, जुल्फिकार मला, मोहसिन जतोई और दीगर ने कहा है कि जब तक वकला का धरना बबरुल्लू बाईपास पर जारी है तब तक कंडियारों में भी धरना जारी रहेगा। तो नाज़रीन, बबरलो धरने में शिरकत के लिए संधेनिया वाली से तहरीक का काफिला हैदराबाद से रवाना कर दिया गया है। अवामी तहरीक के मरकजी रहनुमा लाल जरवार, सिंधियानी तहरीक की मरकजी सदर उमरा समून और एडवोकेट राहिल भुट्टो, नूर नबी पोलेजो, डॉक्टर मारवी सिंधु और दीगर के क़यादत में सिंधियानी तहरीक और अवामी तहरीक के कारकुनान की बड़ी तादाद हैदराबाद से बबरुल्लू की जानिब रवाना हुई। अवामी तहरीक और सिंधियानी तहरीक के कारकुन पहले दिन से बबरुल्लू धरने में मौजूद है। मुजाहिरीन का कहना था कि बिलावल शहबाज इत्तेहादी हुकूमत ने कारपोरेट फार्मिंग मंसूबे लाकर मुल्क दुश्मनी की है। कारपोरेट फार्मिंग कंपनियों को पानी फराहम करने के लिए 6 नई नहरें तामीर की जा रही हैं। दरियाए सिंध के बहाव की बहाली तक पुरअमन जमहूरी जदोजहद जारी रहेगी। रीजनल पुलिस ऑफिसर फैसल आबाद ज़ीशान असगर और सिटी पुलिस ऑफिसर फैसल आबाद साहबजादा बिलाल उमर ने पुलिस कम्युनिटी इंगेजमेंट सेंटर में दूसरी पुलिस खिदमत वैन का इफ्तिताह कर दिया। एसएसपी ऑपरेशंस अमारा शरासी और दीगर अफसरान भी हमरा मौजूद थे। इस मौका पर सिटी पुलिस ऑफिसर ने कहा है कि पुलिस वैन फाल करने का मकसद शहरियों को दहलीज पर सहूलियात फराहम करना है, जिसमें करेक्टर सर्टिफिकेट, इम्प्लाई रजिस्ट्रेशन, लर्निंग लाइसेंस और इंटरनेशनल लाइसेंस, पुलिस वेरिफिकेशन, क्राइम रिपोर्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्राइवेट अप्लाई, व्हीकल वेरिफिकेशन, एफआईआर की कॉपी की पुलिस वैन में सहूलियात दी जाएंगी। एसएसपी ऑपरेशन अमारा शरासी मोबाइल वैन की बराह रास्त निगरानी करेंगी। पुलिस मोबाइल वैन मुख्तलिफ इलाकों में जाकर सहूलियात फराहम करेगी। चिल्ड्रन हस्पताल फैसलाबाद में डॉक्टर उमेर विर्क और डॉक्टर आसमा की रहनुमाई में गैस्ट्रो डिपार्टमेंट के ज़रिए एहतमाम वर्कशॉप मुनक्किद की गई है, जिसका मकसद बच्चों में ग़िज़ाई कमी, उसके असबाब और इलाज के बारे में आगाही पैदा करना था। जी हाँ, इस वर्कशॉप में 150 से ज़ायद शुरका ने शिरकत की, जिनमें डॉक्टर्स, पोस्ट ग्रेजुएट, रिहायशी, जबकि नर्सिंग स्टाफ, फूड साइंस डिपार्टमेंट के तलबा और चिल्ड्रन अस्पताल फैसलाबाद अस्पताल के पेशावर अफराद शामिल थे। इस अहम सेशंस में डॉक्टर ख्वाजा मोहम्मद अरशद ने ग़िज़ाई कमी का जायज़ा पेश किया। डॉक्टर जायद महमूद ने बच्चों में मोटापे और रोशनी डाली, जबकि डॉक्टर नगीना शहजादी ने ग़िज़ाई कमी पर हकीकी केसेस की रोशनी डाली। आगे बढ़े, आपको बताएं कि नानकाना साहिब में पोलियो मुहिम का तीसरा रोज़ डिप्टी कमिश्नर ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके पोलियो वर्कर्स की हाजिरी और कारकर्दगी का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने ट्रांजिट पॉइंट लारी अड्डा में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का जायजा लिया है। डीसी ने घर घर जाकर बच्चों के हाथों पर लगाए गए निशानात समेत घराना नंबर्स को चेक किया है। डिप्टी कमिश्नर ननकाना का कहना था कि जिला में पोलियो मुहिम 25 अप्रैल तक जारी रहेगी। टारगेट को हर सूरत पूरा किया जाएगा। दौरों का मकसद कोई बच्चा पोलियो के कतरे पीने से महरूम न रहे। पोलियो वर्कर्स सख्त गर्मी में अपने फ़राइज़ एहसन तरीके से सरअंजाम दे रहे हैं। वालिदैन पोलियो टीम से ताउन करें। दूसरी जानिब ननकाना साहब में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का अचानक दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने इमरजेंसी वार्ड, बच्चा वार्ड समेत अस्पताल के दीगर शोबाजात का मुआयना किया है। डिप्टी कमिश्नर ने ड्यूटी रोस्टरम के मुताबिक हाजिरी, अद्वियात की मुफ्त फराहमी, सफाई सुथराई समेत दीगर सहूलियात का भी जायजा लिया। डीसी ने मरीजों की आयादत की, उनके लवाहिकीन से इलाज, मुआवजे के फराहमी और अमले के रवैये बारे भी दरियाफ्त किया। डिप्टी कमिश्नर ननकाना का कहना था कि हस्पताल इंतज़ामिया वार्ड्स में जबकि नंबरिंग लगाए और बेड पर मरीज़ का नाम दर्ज किया जाए। हर मरीज़ के पास एक अटेंडेंट से ज़्यादा ना हो। डिविजनल इंतज़ामिया पब्लिक सर्विस डिलीवरी में बेहतरी और प्राइस कंट्रोल के लिए पुरअज़म है। कमिश्नर मरियम खान ने डिप्टी कमिश्नर्स को तजावीज़ात के खिलाफ
ऑपरेशन प्राइस कंट्रोल सरगर्मियां तेज करने का हुक्म दे दिया। कमिश्नर ने इजलास में जारी इंसदादे पोलियो मुहिम के अहदाफ हासिल करने के बारे में ब्रीफिंग ली है। चारों अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को KPAs के मुकर्रर टारगेट्स और सूरत हाल का जायजा लेने के अहकाम जारी किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर झंग, टोबा टेक्सिंग, ADCG चनियोट ने बजरिया वीडियो लिंक शिरकत की है। कमिश्नर मरियम खान का कहना था कि एशिया के नोटिफाइड रेट्स पर फरोख्त यकीनी बनाई जाएगी। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स फील्ड में निकलें। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन बिला तफरीक जारी रहना चाहिए। ननकाना साफ में वज़ीर आला पंजाब की ड्रग फ्री पंजाब मुहिम के तहत कार्रवाइयाँ जारी हैं। ज़िले पुलिस का रवां माह के दौरान मनशियात फरोशों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। ननकाना साहिब में मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान मनशियात फरोशी में मुलविस 50 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। मुलजिमान से 40 किलो से जायद मनशियात और 395 लीटर शराब बरामद की गई। DPO ननकाना का कहना था कि ज़िले को मनशियात फरोशी की लानत से महफूज बनाना अवलीन तरजीह है। नौजवान नस्ल की रगों में नशे का जहर घोलने वाले नाकाबिले मुआफ़ी हैं। ओकाड़ा पंजाब फूड अथॉरिटी का सेहत दुश्मनों के गिर्द घेरा तंग। फूड सेफ्टी टीम का जाली मसाले तैयार करने वाले यूनिट पर छापा। 200 किलो गैर मयारी मसाले, 66 किलो जाली पैकिंग मटेरियल तल्फ कर दिया गया। ओकाड़ा पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से जालसाजी और धोखाधड़ी में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ आए रोज कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। जाली मसालेजात पैक करने वाले यूनिट पर कार्रवाई अमल में लाई गई है। मुख्तलिफ ब्रांड्स के नाम से मसालेजात की जाली पैकिंग की जा रही थी। इंस्पेक्शन के दौरान सुर्ख मिर्चें, हल्दी पाउडर, नमक और सिरका बरामद किया गया है। मसालेजात को मुख्तलिफ कंपनियों के नाम से पैक करके मार्केट में फरोख्त किया जाना था। फूड सेफ्टी टीम ने मसनूआत के सैंपल लेकर मजीद जाँच के लिए लेबोरेटरी भिजवा दिए हैं। कार्रवाई के दौरान तमाम पैक शुदा और खुला सामान जब्त करके चक्की की प्रोडक्शन बंद कर दी गई है। जालसाजी पर फूड बिजनेस मालिकान के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी गई हैं। दूसरी जानिब हसन मुर्तज़ा का कहना था कि गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी के इस्तकबालिया पर बैनर्स उतारकर चनियोट इंतजामिया ने अच्छा तासुर नहीं दिया। लाहौर या चनियोट नून लीग वाले बाज नहीं आते, जिस पर शदीद एहतजाज करते हुए ये पैगाम अपनी क़यादत और हुकूमत को भी दें कि हमने चनियोट में एक सियासी जमात फतह करने की कोशिश की है। बैनर्स नहीं भी होंगे तो भी गवर्नर KP का भरपूर इस्तकबाल करेंगे। पीपल्स पार्टी एक सियासी जमात है जो अपने जमहूरी हक पर कंप्रोमाइज नहीं करेगी। और उधर शिकारपुर पुलिस का अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए ज़िले के मुख्तलिफ मकामात में सर्च ऑपरेशन जारी है। SSP शिकारपुर शाहजेब चाचड़ के अहकामात पर DSP सिटी पार्स भिकरानी की ज़ेर निगरानी में शिकारपुर पुलिस का मुख्तलिफ मकामात पर सर्च कॉम्बिंग ऑपरेशन किया गया है। कॉम्बिंग ऑपरेशन में रिहायशी होटल्स और मुसाफिर खानों और दीगर अहम मकामात पर किया गया है। होटल इंतजामिया को रिकॉर्ड मेंटेन रखने का पाबंद बनाया गया। सर्च कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान मुख्तलिफ इकसाम की छोटी बड़ी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को भी चेक किया गया है। दादू में जारी पोलियो मुहिम के पहले रोज के पेशरफ्त और फील्ड में टीम्स की कारकर्दगी, हाजिरी और टीम्स के दरपेश चैलेंजेस का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर दादू की ज़ेर सदारत AC ऑफिस में इजलास मुनक्किद किया गया है। मजीद जानते हैं जुमा खान की रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, दादू में जारी पोलियो मुहिम के पहले रोज की पेशरफ्त और फील्ड में टीमों की कारकर्दगी, हाजिरी और टीमों के दरपेश चैलेंजेस का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर दादू सैयद मुर्तज़ा अली शाह की ज़ेर सदारत AC ऑफिस दादू में अहम इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में डिप्टी कमिश्नर दादू ने फील्ड के मुतालिक तमाम अमूर का तफसीली जायजा लिया और अमलदारों को हिदायत देते हुए कहा कि फील्ड में टीमों को दरकार तमाम सहूलियात मुहैया किए जाएं, लेकिन काम के मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मुहिम के दौरान घर घर पहुंच टीमें बच्चों को पोलियो से बचा के कतरे पिलाएं, जैसे कोई एक भी बच्चा कतरे से न रह जाए और कोई बच्चा पोलियो जैसे मूजी मर्ज में मुब्तला न हो। डिप्टी कमिश्नर दादू ने वालिदैन से अपील की कि घर के दरवाजे पर आने वाले पोलियो टीमों के साथ ताउन करें, जैसे आपके फूलों जैसे बच्चों को पोलियो से हिफाजती कतरे पिलाए जा सकें और उनको उम्र भर की माजूरी से बचाया जाए। जुमा खान ब्राह्मणी, TV टुडे दादू।
आगे बढ़े आपको बताएं कि मुल्क भर की तरह ज़िला हरीपुर में भी पोलियो मुहिम तीसरे रोज़ भी जारी है। पोलियो मुहिम के तहत 2,04,582 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। डीसी हरीपुर का कहना था कि जिला हरीपुर में 1028 टीम्स तैनात कर दी गई हैं। पोलियो टीम्स के साथ हरीपुर पुलिस के 1100 एहलकार तैनात हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का पंजाब धीरानी प्रोग्राम के तहत झंग और टोबा टैक्सी की 86 जोड़ों की इज्तिमाई शादियों की मुश्तरका तकरीब का एहतमाम किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं महमूद अब्बास की इस रिपोर्ट में। झंग में धीरानी प्रोग्राम के तहत 86 जोड़े शादी के बंधन में बंध गए। धीरानी प्रोग्राम की तकरीब झंग में मुनक्किद हुई, जिसमें झंग और टोबा के 86 जोड़ों की इज्तिमाई शादियों का मुश्तरका एहतमाम किया गया। वज़ीर आला पंजाब की तरफ से ये सब कुछ मुमकिन हुआ है, क्योंकि हमारी फैमिली इतनी स्टेबल नहीं थी कि वो कर सकती। हमारा एक बेटी को फर्ज अदा करना बहुत मुश्किल होता है। हमें जहेज भी अच्छा दिया और इस्लामी भी हमें दी है। तकरीब के मेहमान खुसूसी हाजी अकरम अंसारी, डायरेक्टर जनरल सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल ने नौब्याता जोड़ों को मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाया। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की तरफ से धीरानी इस्लामी कार्ड भी दिए, जिसके जरिए 2,21,000 हासिल किया जा सकेगा, जिसमें नौब्याता जोड़ों को 1 लाख रुपए सलामी और 1,21,000 जहेज की मद में दिया गया। गरीब लोगों के लिए शादियां करना आसान हो गई। लोग बड़े परेशान थे अपनी बच्चियों की शादी के लिए, और सीएम ने ये जो प्रोग्राम करके हमारे गरीबों को नवाजा है, और इंशाल्लाह ताला इसी तरह नवाजते हैं। दूल्हा दुल्हन और तकरीब के शुरका के लिए जोहराने का एहतमाम किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का विजन अवाम की खिदमत करना है। रवां साल 3,000 जोड़ों की शादियों का टारगेट पूरा किया जा रहा है। पंजाब धीरानी प्रोग्राम वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की अवामी खिदमत के जज्बे की अक्कासी है और पंजाब धीरानी प्रोग्राम को तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। कैमरा टीम के साथ महमूद अब्बास, टीवी टुडे, झंग। नाज़रीन, भावलपुर में जश्न बहारत से के हवाले से 3 रोज़ा प्रोग्राम के हवाले से मुख्तलिफ तकरीबात का इनकाद का सिलसिला भी जारी है। जी हाँ, मज़ीद देखते हैं गुलाम मुर्तज़ा की इस रिपोर्ट में। भावलपुर में जश्न बहारा 2025 का इनकाद किया गया। इस तकरीब में भावलपुर के शहरियों ने और स्कूल के बच्चों और फैमिलीज की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस 3 रोज़ा जश्न बहारों को पुरवकार और यादगार बनाने के लिए इस तकरीब में पैराग्लाइडिंग, टेंट पैकिंग, कबड्डी, पीठ शो, मुतअद्दिद सरगर्मियों ने मेला सजाया। इस तकरीब में स्कूल के बच्चों और टीचर ने सकाफती कल्चर को उजागर करने के लिए मुख्तलिफ स्टॉल का इनकाद किया, जिससे शहरी खूब लुत्फ अंदोज हुए। इस तकरीब से डिवीजनल सदर यूथ विंग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून साद मसूद ने रिबन भी काटा और मीडिया से गुफ्तगू जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें बड़ी खुशी है कि भावलपुर डीएचए ने जश्न बहारा 2025 का इनेकाद किया और द वेरी फर्स्ट टाइम यहाँ घोड़ों का निज़ाबाजी का मुकाबला भी हुआ है, जो हमारी सकाफती पंजाब की रवायत है, और इसके साथ साथ जो हमारी जनरेशन जी है उनके लिए ऑटो शो का भी इस तकरीब में मीडिया से गुफ्तगू करने का सिलसिला थम न सका। है रोही दवासी, उसकी रिप्रेजेंटेशन हमारे स्कूल के बच्चे और बच्चियां कर रहे हैं, और यहाँ पे कल्चरल स्टॉल है जिसकी प्रोजेक्शन कर रहे हैं हमारे, और सारा जो पाकिस्तान का कल्चर, रोही का कल्चर है, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेरा नाम वानिया है, मैं 4th क्लास में पढ़ती हूँ। हम लोग ना डीएचए आए हैं और हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पे, और हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। जश्न बहारा में जहाँ बड़ों के लिए लजीज खानों और सकाफती स्टॉल लगाए गए, वहीं पर बच्चों के लिए किड्स कॉर्नर, इलेक्ट्रिक कार्ट, डबल ट्रैक्टर, राइडर और झूलों समेत मुख्तलिफ सरगर्मियों ने मेले को चार चांद लगा दिए। मैनेजमेंट है, बहुत ज़बरदस्त इंतजाम किए गए हैं, बहुत ज़बरदस्त एंटरटेनमेंट का तरीका है। हम यहाँ से 300 से 400 बच्चे लेके आए इस वक्त, जो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। ब्रिगेडियर मोहम्मद नवीद इकबाल ने मेहमान आने और शुरका का शुक्रिया अदा करते हुए जश्न बहारा की इस रवायत को जारी रखने का अज़म किया
اس نئے بہاولپور کی جشن بہاراں تقریب سے شہری خوب لطف اندوز ہوئے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ غلام مرتضیٰ، ٹی وی ٹوڈے، بہاولپور۔ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں گے لاڑکانہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے متنازع نہروں کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی ہے۔ ریلی میں وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خیر محمد شیخ، چیئرمین ڈسٹرکٹ کونسل اعجاز لغاری، طارق انور، جبکہ میئر لاڑکانہ انور علی، نواز لہر اور عمر خان سمیت پارٹی کے رہنماؤں اور کارکنان نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ریلی لاڑکانہ کے کینڈی مارکیٹ سے ہوتے ہوئے جناح باغ چوک پر اختتام پذیر ہوئی، جس میں شدید نعرے بازی بھی کی گئی اور گزشتہ دنوں پیپلز پارٹی کے پرچموں کو اتارنے کے عمل کی شدید مذمت کی گئی۔ گورنمنٹ ہائی اسکول کے طلبہ کا فلسطینی مسلمانوں کے حق میں فیروزپور روڈ پر احتجاجی مظاہرہ، جبکہ مظاہرین فلسطین زندہ آباد اور اسرائیل مرد آباد کے نعرے لگاتے رہے۔ اسکول کے طلبہ نے اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ کا بھی اعلان کیا۔ جی ہاں، اسٹوڈنٹ فیڈریشن مصطفیٰ آباد کی طرف سے راجہ حسنین محمد فیضان کی زیر قیادت گورنمنٹ ہائی اسکول مصطفیٰ آباد کے طلبہ نے مین فیروزپور روڈ کو بند کر کے مظلوم نہتے فلسطینی مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ طلبہ فلسطین زندہ باد اور اسرائیل مرد آباد کے نعرے بھی لگا رہے تھے۔ طلبہ نے اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ کا بھی اعلان کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل اور اس کے حمایتی ممالک مظلوم نہتے مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ انسانیت کا درس دینے والوں نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی ہے۔ امت مسلمہ کو چاہیے کہ قبلہ اول کی آزادی اور مظلوم فلسطین مسلمانوں کے لیے عملی اقدامات کریں۔ قبلہ اول صرف فلسطینی مسلمانوں کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ قبلہ اول کا تحفظ ہر مسلمان کا ایمان کا حصہ ہے۔ لیسکو سب ڈویژن خانقاہ ڈوگرہ ایس ٹی او شہزاد تبسم کی رینجرز اور پولیس کے ہمراہ بجلی چوروں اور نہ دہندگان کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن، لاکھوں یونٹس اور ڈکٹیشن بلز جاری، متعدد بجلی چور بلز گرفتار کر کے مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ ایکسین فاروق آباد شاہد نوید چٹا کی سربراہی میں خانقاہ ڈوگرہ سب ڈویژن رینجرز پولیس فورس کی مشترکہ ٹیموں نے 25 لاکھ روپے واجبات کی ادائیگی نہ کرنے پر 14 نادہندگان کو موقع سے گرفتار کروا کر حوالات منتقل کیا، جبکہ بجلی چوری کے سدباب کے لیے ایک گاؤں کی بجلی منقطع کر کے ٹرانسفارمر اتار لیا گیا۔ گرفتار نادہندگان سے 30 لاکھ روپے واجبات بھی موقع پر وصول کیے۔ عارف والا کے کسانوں نے حکومت پنجاب کے کسان ریلیف پیکج کو مسترد کر دیا، جبکہ منڈیوں میں گندم کا ریٹ مزید نیچے گر گیا، جس پر کسان تشویش میں مبتلا ہیں۔ جی ہاں، مزید دیکھتے ہیں ذاکر حسین جویا کی یہ رپورٹ۔ حکومت پنجاب کے کسان ریلیف پیکج کو عارف والا کے کسان طبقے نے یکسر مسترد کر دیا۔ پاکستان کسان اتحاد صوبائی صدر چودھری رضوان اقبال کا کہنا ہے کسان ریلیف پیکج سے گندم میں ہونے والا مالی نقصان پورا نہیں ہوگا۔ حکومت پنجاب ریلیف پیکج کی بجائے گندم کا مناسب ریٹ طے کرے۔ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ ابھی بھی کاشتکار کو 4000 ریٹ دیں، ورنہ اگلے سال ہم کاشتکار احتجاجاً گندم کاشت نہیں کریں گے۔ جبکہ گندم کی بے قدری پر کسانوں نے آئندہ سال گندم نہ اگانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ صورتحال اس ویلے یہ ہے کہ ساری جڑی کاشت گندم تے لاگت ہے اور 3400-3500 روپیہ فی من دی ہے، وہ بھی ساری پوری نہیں ہونی۔ منڈیاں دے وچ ایسے صورتحال 2100-2200 روپیہ، وہ بھی خریدار کوئی نہیں ہے گا۔ غلہ منڈی میں گندم کی قیمت مزید نیچے گر چکی ہے، جس سے گندم کی فصل پر کیے گئے اخراجات بھی پورے نہیں ہو پا رہے ہیں۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں گے سوات میں تندور ایسوسی ایشن کا ایک اہم اجلاس ویدکی کے مقام پر منعقد ہوا ہے، جس کی صدارت صدر سبز علی نے کی ہے۔ اجلاس میں مختلف تحصیلوں کے نمائندوں نے بھرپور شرکت کی۔ مزید دیکھتے ہیں سوات سے افتخار احمد کی یہ رپورٹ۔ سوات میں تندور ایسوسی ایشن کا اہم اجلاس وطکی کے مقام پر منعقد ہوا، جس کی صدارت ایسوسی ایشن کے صدر سبزالی نے کی۔ اس اجلاس میں تحصیلی چارباغ، تحصیلی بریکوٹ، تحصیلی کبل سمیت دیگر علاقوں سے تعلق رکھنے والے صدور اور نمائندگان نے بھرپور شرکت کی۔ اجلاس کے دوران تندور سے وابستہ مسائل پر تفصیل سے بات چیت کی گئی، جن میں آٹے کی قیمت، گیس کی فراہمی، حکومت پالیسیوں اور مقامی مسائل پر غور کیا گیا۔ صدر سبزالی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خدمت کرنا ان کا شیوا ہے اور وہ تندور مالکان اور مزدوروں کے مسائل سے بخوبی آگاہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ ہمیشہ تندور برادری کے ساتھ کھڑے رہے اور آئندہ بھی ان کے حقوق کے لیے آواز بلند کرتے رہیں گے۔ اجلاس کے اختتام پر تمام شرکاء نے متفقہ طور پر اس بات کا اعلان کیا کہ سبزالی ہی تندور ایسوسی ایشن کی حقیقی نمائندہ ہے اور وہی صدر رہے گی۔ اجلاس کا ماحول خوشگوار رہا اور اتحاد و اتفاق کا عملی مظاہرہ دیکھنے کو ملا، جس سے واضح ہوا کہ تندور برادری اپنے مسائل کے حل کے لیے متحد ہے
और आखिर में दुआए खैर की गई। इफ्तिखार अहमद, टीवी टुडे, वतके मिंगौरा, स्वात। और नाज़रीन, भावलपुर DHA में जश्न बहारा के हवाले से 3 रोज़ा प्रोग्राम के हवाले से मुख्तलिफ तकरीबात का इनकाद का सिलसिला भी जारी है। मज़ीद जानते हैं गुलाम मुर्तज़ा से। जी गुलाम मुर्तज़ा, बताइएगा। मौजूद हूँ भावलपुर के DHA में, और DHA के हवाले से बात की जाए तो DHA की इंतज़ामिया की तरफ से बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट इवेंट का इनकाद किया गया है, जिसमें भावलपुर के शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की है, जिसमें स्कूल के बच्चे भी हैं, स्कूल के असातिज़ा भी हैं, और भावलपुर के मुख्तलिफ शहर के कई शहरी ने इसमें शिरकत की है। और यहाँ पर जश्न बहारा प्रोग्राम का इनकाद किया गया है, जिससे शहरी खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। इसके साथ साथ बताता चलूँ कि यहाँ पर घुड़सवारी भी की गई है। इसके साथ साथ मैं बताता चलूँ यहाँ पर स्कूलों से ट्रैकर बस पे तलबा भी आए हैं, और जश्न बहारा के हर इवेंट से लुत्फ़अंदोज़ हुए हैं। शहरियों का कहना है कि ऐसे इवेंट का इनकाद शहरियों की ज़हनी नशो-व-नुमा के लिए बहुत ज़रूरी है। जी नाज़रीन, सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के ताबन से चलने वाले जाम माशूक अली पब्लिक स्कूल में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सालाना इम्तिहानात 2025 में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा और तालिबात को एजाज़ात से नवाजा गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी साले जुनेजो, इस्माइल गाहो, अली नवाज, वसान अली शेर अब्बासी और असलम राजपूत थे। इस मौके पर मेहमानों ने असातिज़ा की अनथक मेहनत और शागिर्दों की कामयाबी को सराहते हुए कहा कि ये सब तालीमी मयार की बेहतरी का नतीजा है। स्कूल में न सिर्फ निसाबी तालीम पर जोर दिया जा रहा है, बल्कि हम निसाबी सरगर्मियों जैसे खेल, तकरीरी मुकाबले, टैबलूस को भी फ़रोग़ दिया जा रहा है, ताकि तलबा की ज़हनी नशोनुमा बेहतर अंदाज में हो सके। तकरीब के अख्ताम पर पोजीशन हासिल करने वाले तलबा और तालिबात में सर्टिफिकेट्स, मेडल्स और ट्रॉफियाँ तकसीम की गई, जबकि तलबा ने रंगारंग तकारीर और टैबलूस के ज़रिए तकरीब को यादगार बनाया। और रोजान में गुज़िश्ता रोज़ 6 के करीब घरों को अचानक आग लग गई। आग लगने से घरों में मौजूद तमाम तर सामान जलकर खाकस्तर हो गया। मुतासरा ख़ानदान खुले आसमान तले बैठने हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। मज़ीद देखते हैं रुझान से सिकंदर मज़ारी की ये रिपोर्ट। रुझान के नवाही इलाका मौजा मंदरी में 6 के करीब घरों को आग लग गई। आग लगने से घरों में मौजूद तमाम तर सामान जलकर खाकस्तर हो गया। घर में रखा सामान गंदम की अनाज भी जलकर राख बन गए, जबकि आग लगने से 6 के करीब मवेशी भी जलकर हलाक हो गए। साढ़े बालें दे कपड़े सड़ गए, दहेज रखा वो ही सड़ गए, साढ़े शादियां तैयार हैं बालें दे, उन्हें दे सारे कपड़े सड़ गए, दाने सड़ गए, गंदम खड़ा वो सड़ गए, माल सड़ गए, कख नहीं साडा बच गया था। असा रोल गयो बेटा भिरावा हुकूमत को असा खेंदे पियो, साडा जिरा ना कुछ सोचा वने गरीबें दे बारे च, मरियम नवाज बीबी को खेंदे पियो, साडे बारे च सोचो हुकूमत वाले कुछ, साडे अपने जेरे इथाई बैठे रुझान वाले भुतार यही साडे बारे च कोई सोचन। गरीब बंदे हो साडा कख नहीं, निके निके बाल ने ये कपड़े जेरे पाती वजन कोई पेरू नंगे वदन ते चुदे, नशूम कख नहीं रह गया साडा अद्धा। दूसरी जानब मुतासरा खानदान का कहना है कि हमारी तमाम तर जमा पूंजी और बच्चों के लिए रखा जहेज का सामान भी जलकर राख बन गए, और अब हम खुले आसमान तले अपने अहले खाना के साथ बैठे हुए हैं। सही सदा अचानक घर सड़ गए, आग लग गया, सदा कोई ना माल बच्चा ना कई शे बच्चा रुल गयूं, तबाह थी गयूं, बच्चे दे कपड़े सड़ गए, माल सड़ गए, कई जानवर सड़न, कई जख्मी हैं। गरीबों सदा सवाल वजीर आला ने सदा मेहरबानी कर हुकूमत इमदाद करे, घर दे दाने सड़ गए, अट्टे सड़ गए, हर शय नहीं बच्चा, कपड़ा हिक नहीं निकता, गरीबों सा रुल गयूं, सदा वजीर आला इमदाद करे। मुतासरा खानदान ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि हमारी माली मदद की जाए। तो नाज़रीन, पंजाब भर की तरह कसूर में भी गंदम की फसल पक कर तैयार हो चुकी है। गंदम सिर्फ फसल नहीं, ये पाकिस्तान की खुद कफालत, मैशियत और आवाम के चूल्हे की ज़मानत है। मगर रवाबार्स वो किसान जो सोने जैसी गंदम की लहलाती फसल को देखकर उसके घर खुशियों का समा होता था, इस दफ़ा परेशानी दिखाई देता है। मज़ीद देखते हैं कसूर से उसामा नदीम अख्तर की इस रिपोर्ट में।
गंदम की सुनहरी बालियां जब लहलहाती हैं तो ये मंजर किसानों के लिए खुशियों का पैगाम होता है, मगर इस बार गंदम की फसल की भरपूर तैयारी के बावजूद भी किसानों के चेहरों पर खुशी नहीं बल्कि तशवीश और परेशानी के आसार हैं। कसूर में गंदम की कटाई और गहाई का अमल जोरों शोर से जारी है, मगर रवां बरस किसान हुकूमती रेट मुकर्रर न होने से परेशान हैं, जिनका कहना है कि हम दिन रात मेहनत करते हैं, महंगी खादें, बिजली के भारी बिल और जमीनों के महंगे ठेके देते हैं और जब फसल तैयार होती है तो इसकी मुनासिब कीमत नहीं मिलती। कणकां दी बड़े नुकसान होया है ते स्प्रेवां कीतियां बड़ियां बड़ियां महंगियां ते इस करके कोई हुकूमत कड़ी भी ये तावन करे गरीबां नूं। और गरीब लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, गंदम का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इसमें आपको मालूम है कि खाद वगैरह स्प्रे वगैरह बहुत महंगी डलती हैं, इसलिए गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे। इस दफ़ा खर्चा भी पूरा नहीं हुआ। हुकूमत को चाहिए कि गरीब लोगों के साथ पूरा ताउन करे। ज़राअत पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की मानिंद है, मगर हुकूमत की अदम दिलचस्पी और गैर संजीदगी से ये हड्डी टूटने के करीब है। इस दफ़ा गंदम की हुकूमती कीमत न होने से आड़ती हजरात अपनी मर्जी से गंदम सस्ते दामों खरीद रहे हैं। किसान जिन्होंने साल भर खून पसीना बहाया अब अपने ही पैदा करदा अनाज को बेचने में मजबूर और बेबस दिखाई दे रहे हैं। हुकूमत रेट नहीं कोई काट दी पी है ते आड़त वाले रेट कम दे रहे हैं, आड़त वाले रेट कम ते चुक रहे हैं, कोई मसला नहीं, सारे रेट तो खर्चे ही नहीं पूरे हो रहे साडे ते हुकूमत ने थोड़ा साडे बारे ख्याल करना चाहिए। महंगाई की इस दौड़ में किसान पीछे रह गया। जरूरत इस अमर की है कि हुकूमत फौरी तौर पर गंदम का इमदादी रेट मुकर्रर करे, किसानों के तहफ़्फ़ुज़ात को सुने, क्योंकि अगर किसान खुशहाल ना हो तो ना रोटी सस्ती रह सकती है ना मुल्क तरक्की कर सकता है। कैमरा टीम के साथ उसामा नदीम, टीवी टुडे, कसूर। रिपोर्ट आपने जानी और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज़। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे के ऊपर चाहिए